Hello, namaste everyone. Hope all of you are well. Today we are going to discuss class 11, chapter number 8, redox reaction, NCERT exercise solution. So let's start with our first question. Question number 1. And the question number 1 is that you have to find the oxidation number of the given compound's underlined element. Assign the oxidation number to the underlined elements in each of the following spaces. First is sodium phosphate, NaH2PO4. First question is NaH2PO4. NaH2PO4 and phosphorus is underlined. This is your first question. And the second question is NaHSO4, in which sulfur is underlined. NaHSO4 and sulfur is underlined. Let's write all the question of this first one, and after that we'll start doing solution. Third one is H4P2O7. 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 And question number D is K2MnO4. 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 After then CaO2, calcium oxide, right? CaO2, and you have to find the oxidation state of oxygen. Then NaBH4. F1 is NaBH4. You have to find the oxidation state of boron. After then H2S2O7. H2S2O7. You have to find the oxidation state of sulfur. Last but not the least, let's check. The last one is of potassium, aluminium sulfate twice and 12H2. KAl, potassium, aluminium, SO4 halt twice into 12H2. Now you have to find all the underlying elements oxidation. First of all, how to find the oxidation number of the given elements. As already I have informed you, all the compounds elements oxidation number sum is 0. You know very well what are the oxidation number of the rest elements present in the compounds. The underlying elements you can easily find it. As for example, just suppose if I talk about here sodium, if I talk about hydrogen, if I talk about oxygen. Oxygen you know -2, sodium you know +1, hydrogen you know +1. So can you tell me what will if I just want to find the phosphorus oxidation state? So what I will consider the phosphorus let the oxidation state of phosphorus be X. Let the oxidation state of phosphorus be X. So sodium is 1, hydrogen is 1, phosphorus is X, and oxygen is -2 into 4 is equal to 0. So 1 plus 2 plus X minus 8 is equal to 0. So 3 minus 8 means X minus 5 is equal to 0. X is equal to +5. So here the oxidation state of phosphorus in NaH2PO4 is +5. So by this way you can write the oxidation state of the following compounds. Similarly, if I want to find the B1, then how I will write the answers of B? Like here you can see, let the oxidation state of sulfur in NaHSO4 be X, right? So similarly here you know very well sodium's 1, hydrogen 1, sulfur X, oxygen -2 into 4 is equal to 0, right? So here 1 plus 1 2 plus X minus 8 is equal to 0. X minus 6 is equal to 0. X is equal to +6. So here sulfur exists in +6 oxidation state in this compound. Oxidation state in this compound. I hope all of you have understand how to calculate the oxidation number.
Now let's move towards the C question. In the C you have to again find, here there is 2 phosphorus. So what you will write? Let the oxidation state of phosphorus be X. Of phosphorus be X. So what will you write here? 1 Bx in H2P4O7. H2P2O7. H2P2O7. Okay? So here you know very well, hydrogen 1 into 2 plus 2x plus minus 2 into 7 is equal to 0. So 2 plus 2x minus 14 is equal to 0. Right? So here 2x minus 12 is equal to 0. 2x is equal to 12. X is equal to plus 6. So here sulfur exists in the plus 6 oxidation state in this compound. Here sulfur exists in plus 6 oxidation state in this compound. Right? Got it? So by this way you can calculate each and every element's oxidation state. Just suppose the D1 you have to calculate. So how you will calculate the D1? Similarly as we are calculating, let the oxidation state of manganese in K2MnO4 be X. So here potassium 1 into 2, Mn is X, oxygen is minus 2 into 4 is equal to 0. So 2 plus X minus 8 is equal to 0. X minus 6 is equal to 0. X is equal to plus 6. Here Mn exists in plus 6 oxidation state in this compound. Right? So by this way I hope you can write each and every element's oxidation state. Is there any doubt till yet? किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो यहाँ तक तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट बॉक्स. नाउ कैन यू मूव अहेड? Yeah, you should have. Here the question was H4P2O7. यहाँ पर हाइड्रोजन 4 था, हमने 2 लिखा. नो प्रॉब्लम, नो नीड टू वरी. आई एम डूइंग दैट बिकॉज हियर इन द कंपाउंड आई हैव रिटन H2, दैट्स व्हाई इन H2 इट विल बिकम +6. अगर यहाँ पर H4 होगा तो क्या होगा? H4P2O7 तो हमारा सिर्फ यहाँ पर 1 into 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा. 2x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +5. तो हम लोग क्या लिखेंगे? हियर सल्फर एग्जिस्ट. तो यहां पर फास्फोरस, सल्फर नहीं फास्फोरस. हियर फास्फोरस एग्जिस्ट इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस कंपाउंड. समझ में आया? कहां पे मिस्टेक था? यहाँ पर हमारा H4 था और हमने कंपाउंड में H2 लिखा था, इसीलिए वहां पर हम लोगों का +6 निकला. यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आप लोग बना सकते हैं. चलो एक और क्वेश्चन है ई वाला. तो ई वाला में डायरेक्टली अब आप लोग लिखना सीख गए कैसे लिखना है. अब ई वाले में कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन का निकालना है. यू नो वेरी वेल हियर ऑक्सीजन का कैल्शियम का +2 होता है, तो CaO2 में आपको निकालना है. CaO2 में. ओके, तो कैल्शियम का +2 प्लस ऑक्सीजन का x मान लेते हैं. ओके, सो x into 2 is equal to 0. राइट? बात समझ में आई? यहां पर 2x is equal to 0 minus 2. 2x is equal to -2, x is equal to -2 upon 2 is equal to -1. तो यहां पर ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में. उसी तरह से सोडियम बोरेट NaBH4. राइट? चलिए आप लोग इतना लिख लीजिए फटाफट, उसके बाद मैं बोर्ड रफ करूं, फिर आगे बढ़े. ऑल ऑफ यू हैव कंप्लीटेड?
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। NaBH4 में हम लोगों को किसका निकालना है? बोरन का। Question number F. Let the oxidation state of boron be X in NaBH4. और बोरन का हमको निकालना है, बराबर। सोडियम का +1, बोरन का X, हाइड्रोजन का कितना होगा? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन हियर। और यहां पर टोटल इज इक्वल टू 0। हाइड्रोजन का -1 होगा या +1? जल्दी बताओ फटाफट, क्विक। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर जब भी हम कोई कंपाउंड को केटायन और एनायन में डिसोसिएट करते हैं, तोड़ते हैं, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है वो केटायन, राइट हैंड साइड वाला एनायन। यहां पर -1 होगा, याद रखना बच्चों। तो 1 + x - 4 = 0, x - 3 = 0, x = +3। तो यहां पर बोरन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है? +3। याद रखना बच्चों, बोरन यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद G वाला है H2S2O7। चलो G वाला हम लोग बनाते हैं। G वाला है H2S2O7 में हम लोगों को सल्फर का निकालना है। तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का 1 होता है, यहां पर सल्फर का 2x, ऑक्सीजन का -2 × 7 = 0, 2 + 2x - 14 = 0, 2x - 12 = 0, x = 12/2, that is equal to 6. Here sulfur exists in +6 oxidation state. कितना? +6। सबसे बड़ा वाला ये है H वाला। तो H वाला हम लोगों को बढ़िया से बनाना है ताकि हम लोगों को समझ में आए, राइट। चलो H वाला फटाफट हम लोग बना लेते हैं। H वाला जो है KAlSO4 whole twice into 12H2। ये हमारा पूरा का पूरा डबल सॉल्ट है। अब ये डबल सॉल्ट में तुम लोगों को क्या निकालना है? सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं, जो जो जानते हैं हम लोग उतना लिख देंगे, उसके बाद सब बराबर कितना लिखना है अब वो बता देता हूं। ये चीज जानना बहुत ही ज्यादा तुम लोगों के लिए जरूरी है कि जब भी अगर हम किसी भी चीज कंपाउंड को लिखते हैं तो यहां पर हमें सल्फर का निकालना, बराबर। तो पोटाशियम का +1 होता है, तो +1, एल्युमिनियम का +3, यहां पर प्लस, ये जो है सल्फर का हमको x है, 2 सल्फर है, राइट। तो 2x + 4 × 8 है, तो -2 × 8 + 12 × हाँ, यहां पर तुम मुझे पूछ सकते हो कि सर वाटर का कैसे हम लोग लिखेंगे, राइट। तुम्हारा दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर हम लोग वाटर का कैसे लिखेंगे। टेंशन नहीं लेना, जितना हाइड्रोजन का होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 एटम्स है, तो 12 × 1 × 2 प्लस 12 × -2, बराबर। अब देखो क्या सब है, इज इक्वल टू 0, 1 + 3 4, तो 4 + 2x - 16 + 24 - 24 = 0, बराबर। +24 - 24 2x - 12 = 0, 2x = 12, x = +6। तो यहां पर सल्फर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मुझे नहीं लगता है तुम लोगों को कोई भी कंपाउंड दे दिया जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में खासकर कोई भी परेशानी होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा है, व्हाट आर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइंड एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड हाउ डू यू रेशनलाइज योर रिजल्ट। अब तुम कैसे रेशनलाइज करोगे? यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, उस कंपाउंड्स में तुम्हें बताने हैं कि अंडरलाइन एलिमेंट्स के कितने ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे और कैसे तुम रेशियो निकालोगे। कंपाउंड्स का जो तुमने निकाला है ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके रेशियो कैसे निकालोगे। इट्स वेरी इजी फर्स्ट ऑफ ऑल, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े।
क्वेश्चन नंबर 2, Ki3 जिसमें आयोडीन का अंडरलाइन है और तुम्हें बताना है कि यहां पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। वेरी नाइस क्वेश्चन। Ki3 सेकेंड का ए, सेकेंड ए Ki3 और इसमें आयोडीन तुम्हारा अंडरलाइन। तो लेट द ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन बी एक्स इन Ki3। बराबर पोटेशियम का कितना होता है लीडर, +1। आयोडीन का कितना होता है, आयोडीन का हमने x निकाला है और 3 आयोडीन तो +3x = 0। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूं। तुमको बताना है कि सबसे पहले क्या हम यहाँ पर कैटायन और एनायन में ब्रेकअप करेंगे या नहीं करेंगे। कैटायन और एनायन में ब्रेकअप करेंगे तो हमें तो पता नहीं है कि मतलब ये यहाँ पर आयोडीन +1 है कि -1 है या जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है हमें अभी निकालना है। बराबर, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी फिलहाल यहाँ पर निकालते हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ पर 3x = -1, x = -1/3। कोई पूछेगा तुम्हारे यहाँ पर आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो इजीली तुम कह सकते हो यहाँ पर सर सचमुच में -1/3। अब क्वेश्चन आएगा कि तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे। ऑक्सीडेशन नंबर cannot be in fractional, therefore we will have to consider the structure of Ki3। अब तुम्हें Ki3 का ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ इसका स्ट्रक्चर तुमको कंसीडर करना पड़ेगा। अब पूछोगे सर ये कैसे होगा, आयोडीन Ki3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो मैं तुमको बताता हूं, यहां पर आयोडीन जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जानते हो, नहीं जानते हो, डोंट वरी, आई एम शोइंग यू हाउ दिस कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले तुम लोग इसको कैटायन और एनायन में डिसोसिएट करो। Ki3 को ये जैसे है K प्लस इधर हो जाएगा और यहां पर जैसे मैंने तुमको बताया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये इधर आयोडीन जो है -1, इधर +1 और ये दोनों आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 0। ये बहुत ही सीरियस लेवल का क्वेश्चन है। जो बच्चे जानते होंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मैंने तुम लोगों को शायद बताया है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल को ओपन करना, उसमें क्लास 12 का जो फर्स्ट वीडियो होगा रेड कुर्ता वाला, उसमें मैंने बताया है कि किस तरह से कोऑर्डिनेट कंपाउंड में बॉन्डिंग जो एग्जिस्ट करता है किस तरह से एग्जिस्ट करता है। और यहां पर जो मैंने निकाला है x का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/3 जो हमारा आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब क्वेश्चन तुम यहां पर पूछ सकते थे सर क्या एग्जिस्ट करेगा। तो Ki3 का मॉलिक्यूल जो है इसमें 2 ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है और एक जो आयोडीन एटम है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है। तो यहां पर तीनों का पूछ रहा है तो भाई सही है तुम्हारा -1/3, लेकिन अगर एक का पूछेगा तो यहां पर याद रखना है, यहां पे शो करना है कि सिंस बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड द आयोडीन एग्जिस्ट इन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि सर ये कैसे एग्जिस्ट करेगा। इवन मैंने तुम लोगों को शायद ये क्वेश्चन पूछा था केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे थे, तो उस समय में मैंने ये क्वेश्चन को एराइज किया था। अगर तुम लोगों को याद होगा तो, अगर तुम्हें नहीं याद होगा देन इट्स योर विश, लेकिन अगर याद होगा तो उस समय तुम लोगों ने बताया भी था कि सर इस तरह से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा ये किस तरह से हमें निकालना है। दूसरा है H2S4O6, ये तो बहुत इजी है और स्ट्रक्चर भी तुम बता सकते हो इसका H2SO4O6 का। H2S4O6 किसका निकालना है, सल्फर का। तो तुम लोग तो डायरेक्टली बोलोगे x 2x प्लस 2 into 1 not x, ये सल्फर का निकालना है ना। 2 into 1 plus 4 into x plus -2 into 6 is equal to 0, बराबर। 2 plus 4x minus 12 is equal to 0, 4x minus 10 is equal to 0, 4x is equal to 10, x is equal to 10/4। फिर वापस तुम बोलोगे कि सर ये क्या है, 5/2 कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, पूछ सकते हो ना तुम कि सर क्या ऐसा पॉसिबल है 5/2।
5/2 तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन तुम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे तो +2 × 1/2। क्या लिख सकते हैं 5/2 को 2 × 1/2? डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब इसका तुम मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल में जल्दी नहीं होगा, तुम्हें इसको बताना पड़ेगा कि सर इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। हमारे पास टोटल कितने सल्फर है बच्चों? टोटल हमारे पास 4 सल्फर है। अब तुमको यहां पर बताना होगा कि सर ये जो स्ट्रक्चर आपने बताया वो कैसा होगा, H2SO6 का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। सल्फर डबल बॉन्ड, सल्फर 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 डबल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, H O सिंगल बॉन्ड H। टोटल कितने ऑक्सीजन? 6 है, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब तुम लोग पूछोगे कि सर यहाँ पर सल्फर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में शो कर रहा है? तो यहाँ पे बच्चों तुम्हें पता है ऑक्सीजन -2 और यहाँ पर -1, एक इसके साथ और एक इसके साथ, तो सल्फर यहाँ पर +5, वैसा ही सल्फर यहाँ पर भी +5 और इस दोनों पर 0 0। तो 2 सल्फर तुम्हारा कौन से ऑक्सीडेशन? +5। तो इसीलिए यहाँ पर जो तुम्हारा वैल्यू आया है 5/2, बिकॉज यहाँ पर पूरे के पूरे कंपाउंड है, तो कंपाउंड में हमने दोनों सल्फर, चारों सल्फर का निकाला है, तो इसीलिए यहाँ पर तुमको 5/2 आया है। बट अगर तुम स्ट्रक्चर निकालोगे तो ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, HO सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S फिर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और H। ये तुम्हारा H2SO6, जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 4 sulfur atom is +5 and the oxidation number of 2 sulfur atom is 2 सल्फर एटम का +5 है और 2 सल्फर एटम का 0 है। 4 सल्फर एटम्स है, तो इसमें आप देख लीजिए 2 सल्फर एटम का +5 और बाकी 2 का 0। तो इस तरह से क्या तुम लोग कोई भी एलिमेंट्स का निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन था Fe3O4 का, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे कि सर ये कैसे होगा। तो बिल्कुल बच्चों वैसे ही जैसे मैंने तुमको बताया भी था, अगर तुम्हें याद होगा तो Fe3O4 तो यहाँ क्या तुम बता सकते हो कितना होगा, फिर वापस रेशनल आएगा, तुम पूछोगे कैसे होगा, राइट। सो 3x + -2 × 4 = 0, 3x - 8 = 0, 3x = 8, x = 8/3। फिर पूछोगे कि सर फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, तो कैसे होगा? मैंने जैसे बताया था तुम्हें, Fe2O3 होता है और FeO होता है, इस दोनों को मिलाओगे तो Fe3O4 बनता है, जिसको फेरसोफेरिक ऑक्साइड कहा है। ये फेरिक ऑक्साइड, ये फेरस ऑक्साइड, दोनों को मिलाकर के फेरसोफेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो तुमको सिंस 3 कार्बन एटम्स हैं, तो यहाँ पर तुम कह सकते हो आयरन +3 में और यहाँ पर आयरन +2 में, और इसमें जब निकालोगे तो 8/3। अब तुम पूछोगे कि सर इसका भी स्ट्रक्चर बनाना होगा, बनाना चाहो तो बना सकते हो, अदरवाइज जैसे मैंने बताया तुमको कि एक साइड FeO लिख दो या Fe2O3, या मतलब इसको पहले कर दो या इसको बाद में, जैसे लिखना है FeO × Fe2O3, यही इसका स्ट्रक्चर हो गया, बाकी कुछ नहीं, 1 + 2 1 + 3। जो मैंने नीचे में लिखा है क्योंकि हमें याद रखना है जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको बाद में और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को पहले में। तो इस तरह से क्या तुम लोग निकाल लोगे किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, कोई भी कार्बनिक कंपाउंड्स है या फिर कोई भी कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा या नहीं निकलेगा, फटाफट बताओ। तो चलो अब हम लोग डायरेक्टली बनाना चालू करते हैं। So here all of you have seen the iron exists in +2 and +3 oxidation state. Now we will move towards ethanol. Have you heard the word ethanol? Alcohol. In this alcohol you have to find the oxidation number of carbon.
You know very well, hydrogen oxidation number is +1. Just there are 2 carbons, so you can consider the oxidation state or oxidation number of carbon be X. So 2x plus 6 hydrogen and 1 oxygen. 2x plus 6 into 1 plus 1 into -2, that is equal to 0. So 2x plus 6 minus 2 is equal to 0. 2x plus 4 is equal to 0. X is equal to -2. So here the carbon exists in -2 oxidation number. Now similarly, if I talk about acetic acid, or you can say ethanoic acid or acetic acid, so what will be the oxidation number of carbon in this compound? CH3COOH, so 2 carbon, so 2x, 4 hydrogen plus 4 into 1 and 2 oxygen, -2 into 2. So 2x plus 4 minus 4 is equal to 0, 2x is equal to 0, x is equal to 0. So here carbon exists in 0 oxidation number. Similarly, you can see the structure, how it will be the structure of acetic acid. You can see CH3COOH, both the carbon -2 -2, right? Now we are moving towards the third question. Third question is, you have to justify the following reactions are redox reaction or not. Means you have to show that this reaction is a redox reaction or not. First reaction, you can see cuprous oxide plus hydrogen, copper plus water. So it's definitely a redox reaction because copper turns from +2 to 0 and hydrogen turns 0 to +1. You can see here, right? So it is a redox reaction. You can see here. Now we are moving towards this question number 2. Fe2O3 plus 3CO gives Fe plus CO2. Here iron exists in +3 reactant side and product side 0, +3 to 0 reduction. Here carbon +2 to +4 oxidation. So definitely this reaction is a redox reaction. You can see here, right? +3 to 0 and +2 to +4. So it is a redox reaction. 4BCl3 plus 3LiAH4, lithium aluminum hydride. So you can see here boron +3, chlorine -1, aluminum +3, lithium +1, hydrogen -1, and how they turns and gives you the redox reaction. So definitely the oxidation number of each element can be represented as, you can see here as I have represented it. So this reaction, the oxidation number of boron decreases from +3 to, can you tell me, -3, +3 to -3. Lithium +1 to +1, aluminum +3 to +3, chlorine -1 to -1. So can you say this is a redox reaction? Oxidation number of hydrogen increases from -1 to +1 and boron decreases, so definitely it is a redox reaction. Similarly here K plus F2 KF, so here this is also a redox reaction. K0 F0 K plus 1 F minus 1, so oxidation and reduction, you can say this is a redox reaction. NH3 plus 5O2 NO plus 6H2O. So you can see how it is represented, and you can say that this reaction is a redox reaction because nitrogen -3 to +2 and hydrogen, oxygen 0 to -2. So you can see -3 to +2 oxidation and 0 to -2 reduction. So this is a redox reaction. Now we are moving towards the question number 4. Fluorine reacts with ice and result in the change HF plus HOF. So you have to show that this reaction is a redox reaction or not. You know very well, in the H2O hydrogen exists in the +2 and oxygen -2, F2 exists in 0. These are the reactant side. If we talk about the product side, hydrogen exists in +1, fluorine -1, and in HOF hydrogen +1, oxygen -2 and fluorine +1. So 0 to +1 fluorine oxidation and oxygen -2 to -2, hydrogen +1 to +1. Now you can see, is this a redox reaction? Each and every element has been oxidized, right? Here hydrogen is +1 +1 +1. Fluorine is 0 to +1. It is oxidized only. The rest it is not reduced. So both are oxidized. One thing you can say, it is a disproportion reaction
because fluorine exists in -1 and +1 both. So then you can say, yeah, this is a redox reaction because it is a disproportion reaction. Fluorine exists in +1 and -1, both the oxidation state. Now we are moving towards the question number 5. Calculate the oxidation number of sulfur, chromium and nitrogen in the following compound and write down their structures. H2SO5. Hydrogen oxidation state you know very well, that is +1, sulfur X, oxygen -2 into 5 -10. So 2 plus X minus 10, 2 minus 8 is equal to X minus 8 is equal to 0, X is equal to +8. You can see the structure, how that, first of all sulfur up and down, -2 that's +2, oxygen, perolink, oxygen and then one oxygen with OH and OH both the sides. Right? So this is the structure of H2SO5. Right? Sulfur exists in +6 oxidation state. Now Cr2O7, you know very well, chromium exists in +6 oxidation state, but what will be the structure? You can see here the structure of chromium. Right? Chromium 2 oxygen will be with the double bond and rest 2 with the single bond. Right? And chromium exists in the +6 oxidation state. What's about the nitrate? You can see NO3 minus, nitrogen X, oxygen -2 into 3, that is equal to -1. X minus 6 is equal to -1, X is equal to +5. So here nitrogen exists in +5 oxidation states. Now you can see the structure of nitrogen here, as the nitrogen exists in, how nitrogen exists in +5. 2 oxygen single bond, in which 1 oxygen two oxygen -2 and 1 oxygen -1. Now you have to write, yes, this is a very very important stock notation formula, mercury 2 chloride. How you write the formula? Mercury 2 chloride means here mercury exists in +2 oxidation state, so HgCl2. Can we write? You can see in the answer options, you have to write like this: mercury 2 chloride, HgCl2, nickel 2 sulfate, NiSO4, tin 4 oxide, SnO2, thallium sulfate, Tl2SO4, iron sulfate, Fe2SO4 all thrice, chromium oxide, Cr2O3. Now we are moving towards the question number 7. Suggest a list that substance where carbon can exist oxidation states from -4 to +4 and nitrogen -3 to +3, right? So can you tell me which compound is that? I can tell you. Here you can see some of the compounds of carbon exist from 0 to +4. You can see CH2Cl2, here carbon exists in 0 oxidation state, CCl, carbon +1. Right? Acetate, this ACE means acetate, don't confuse it. The meaning of acetate here, acetate oxidation state +1, CHCl3 and CO, both carbon oxidation state is +2, CH3Cl here carbon oxidation state is +2, CH3C acetate CCl3, here you can see the carbon oxidation state +3. Similarly, you can see here all the compounds of carbon exist from 0 to +4 oxidation state. Now let's see about the nitrogen, how you will understand. About the nitrogen, you can see here N2, 0 oxidation, N2O +1, N2H2 +1, right? NO +2, N2H4 +2, N2O3 +3, NH3 3, NO2 +4 and N2O5 +5. So by this way you can see the oxidation states of the following compounds. Now we are moving towards the question number 8, right? So question number 8 is, while sulfur dioxide and hydrogen peroxide can act as oxidizing as well as reducing agent in the reactions, ozone and nitric acid acts only as oxidants. Why? This is the question. Can you tell me why? Because in sulfur dioxide, the oxidation number of sulfur is +4, and when it, especially if I talk, it ranges from -2 to +6, right? So therefore the sulfur dioxide in this compound, it is a reducing agent. In hydrogen peroxide, the oxidation number of oxygen is -1, but generally oxygen exists in -2. Sometimes it also attains +1 and +2. So here H2O2 acts as an oxidizing as well as reducing agent. In ozone O3, the oxidation number is 0, and then it ranges from oxidation number that oxygen can have it from 0 to -2.
Therefore, the oxidation number of oxygen can only decrease in this case. Hence, ozone acts as an oxidant. In nitric acid, the oxidation state of nitrogen is +5 and it can range from +5 to -3. Therefore, the oxidation number of nitrogen can only decrease in this case. So remember, dear student, in nitric acid and ozone, it acts as an oxidant, while if I talk about the sulfuric acid or H2O2, it both acts as a reducing agent as well as oxidizing agent both. Now let's move towards the question number 9. Can you tell me what is question number 9? You have to consider the reactions and you have to also suggest a technique to investigate the path of above A and B are the redox reaction or not. First of all, you can see in the second equation, which is more appropriate, means it is a balanced equation. You know very well how it should be balanced, as I have already taught you in lecture 3 and 4 how to balance the reactions. Now the process of photosynthesis, which is involved in the 2 steps. First step, water decomposes to give hydrogen and oxygen, and in the second step, hydrogen produces, in first step, reduces carbon dioxide, thereby producing glucose and water. So you can see the above reaction, how the reactions are being mentioned and how you should balance the reaction. It's more appropriate to write the reaction as given above because water molecules are also produced in the photosynthesis. The path of reaction can be investigated by using radioactive water in place of H2O. And oxygen is produced from each of the 2 reactants, O3 and H2O2. For this reason, oxygen is written twice. You can see here, the given reaction involves 2 steps. The first, ozone decomposes and oxygen and O2. In the second step, H2O2 react as if I talk about H2O2 react with the oxygen to produce in the first step, they are producing water and oxygen molecule. So you can see here, right? Now let's move ahead. The compound AgF2 is an unstable compound. What is unstable? However, if form the compound acts as a very strong oxidizing agent. Why? मतलब सिल्वर फ्लोराइड एक अनस्टेबल कंपाउंड है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट करता है. क्यों? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर इन AgF2 इज +2, बट +2 इज एन अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिल्वर. Therefore, whenever AgF2 is formed, silver readily accept an electron to form Ag+. This helps to bring the oxidation state of silver down from +2 to more stable +1. As a result, AgF2 act as a very strong oxidizing agent. बस इतना याद रखना है कि सिल्वर जो है ना +2 से +1 में तुरंत कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 11. Whenever the reaction between an oxidizing agent and a reducing agent is carried out, a compound of lower oxidation state is formed. If the reducing agent in excess, a compound of higher oxidation state is formed. If the oxidizing agent is in excess, justify the statement giving the 3 examples. आपको तीनों एग्जाम्पल देना है जिसमें आपको बताना है कि अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों को रिएक्शन करवाएंगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो फॉर्म होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का होगा और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग का होगा. तो बहुत ईजी है. यहाँ पर आप कोई भी कंपाउंड जैसे P4 और F2 को रिएक्शन कीजिए तो यहाँ पर आप इजीली बता सकते हैं P4 0, F2 0, P4 यहाँ पर +3 और F जो है -1. तो किस तरह से यहाँ पर आपने बताया कि ये जो है एक्सेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. लेकिन अगर हम फास्फोरस को F2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो PF5 का होगा जिसमें फास्फोरस +5. तो यहाँ पर यही साबित करना होता है आप लोगों के कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है किस तरह से एक्ट करते हैं. वैसे ही यहाँ पर हम लोग पोटाशियम और ऑक्सीजन को लेंगे तो 4K + O2 2K2O. तो यहाँ पर ऑक्सीजन -2 और पोटाशियम जो है +1. लेकिन अगर K + O2 करोगे तो K2O2 में यहाँ पर ऑक्सीजन -1 और पोटाशियम +1. तो यहाँ पर वही शो करना है तुम्हें कि किस तरह से ये रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से हाई और लो है. कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड सेम केस +2 -2 +4 एंड -2. चले आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है हाउ डू यू काउंट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. कैसे आप काउंट करते हो इस ऑब्जर्वेशन को. इस ऑब्जर्वेशन को काउंट करने के लिए क्या चाहिए. सबसे पहले ये दिमाग में लगाओ ऑब्जर्वेशन क्या है उसको पढ़ो पहले. द अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट एंड एसिडिक पोटाशियम परमैंगनेट बोथ आर यूज्ड
as oxidants, yet in the manufacture of benzoic acid from toluene we use alcoholic potassium permanganate as an oxidant. Why? Write a balanced redox reaction for the reaction. When a concentrated sulfuric acid is added to an inorganic mixture containing chloride, we get colorless pungent smelling gas hydrochloride. But if the mixture contains bromide, then when we get red vapor of bromine, and why? The answers are, अब आप लोग आंसर्स यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली. In the manufacturing of benzoic acid from toluene, alcoholic potassium permanganate is used as an oxidant because in a neutral medium of hydroxide ion are produced in the reaction itself. As a result, the cost of adding of an acid or a base can be reduced. Second, potassium permanganate and alcohol are homogeneous to each other since both are polar, and toluene and alcohol are also homogeneous to each other since both are organic compounds. Reaction can be proceed at a faster rate in a homogeneous medium than that in a heterogeneous medium. Hence, in alcohol, potassium permanganate and toluene can react at a faster rate. The balanced redox reaction for the reaction in the neutral medium is, so you can see here, ये जो मिथाइल बेंजीन है इसी को टोल्यून कहते हैं. इसको मैग्नेट के साथ हमने रिएक्शन किया तो क्या बना आप देख सकते हैं, राइट. दूसरे रिएक्शन में आप देख लीजिए, सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्शन करोगे तो सोडियम बाइसल्फेट और हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और ये ब्रोमीन का जो रेड वेपर है, इस तरह से आप रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट. अब मतलब आपको बताना है, आपको पता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दोनों रिएक्शन को बैलेंस कर दो और बता दो कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन है, कौन सा एलिमेंट रिडक्शन है. ऑक्सीडेशन वाले को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्शन वाले को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. समझ में आ गया. यहाँ पर अगर तुम्हें लिखना है तो देख सकते हो कौन कौन से रिड्यूस सब्सटेंस है, कौन कौन से ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, और किस तरह से तुम्हें ऑक्सीडाइज और रिडक्शन का पता लगाना है. बस सीधा सीधी जैसे मैंने कहा है, तुम लोगों को बस पहले क्या करना है, हर एक रिएक्शन को बैलेंस करके और उसके बाद तुम्हें पता करना है कौन सा रिडक्शन हुआ है, कौन सा ऑक्सीडेशन हुआ है. जो रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, थायोसल्फेट अलग अलग एलिमेंट के साथ, यहाँ पर आयोडीन और ब्रोमीन है, दोनों के साथ अगर सेम रिएक्टेंट है तो अलग बिहेवियर क्यों करता है, राइट. तो यहाँ पर वही चीज़ है कि किस तरह से अलग बिहेवियर ये रिप्रेजेंट करता है. तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S2O3 इज +2, जो एक स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है I2 के कंपेयर में. और ब्रोमीन ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पर, S2O3 को SO4 बना रहा है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर +6 है. लेकिन अगर आयोडीन जो है एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिस कारण से H2O3 को वो ऑक्सीडाइज करके S4O6 2- बना रहा है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +2.5. एज अ रिजल्ट S2O3 2- रिएक्ट्स डिफरेंटली विथ आयोडीन एंड ब्रोमीन. तो कुछ रीजंस होते हैं, आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ के रहना है. चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग मूव होते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, जस्टिफाई गिविंग रिएक्शंस दैट अमंग द हैलोजन फ्लोरीन इज द बेस्ट oxidants and among the hydrohalic compounds hydrochloric acid is the best reactant. ये तुम्हारा देख लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. तुम्हें बताना है कि ये हैलोजन में सबसे बेस्ट ऑक्सीडेंट फ्लोरीन, बराबर, और हाइड्रोहैलिक कंपाउंड्स में हाइड्रोआइडिक एसिड जो है वो बेस्ट रिएक्टेंट है. तो क्या करोगे, सबसे पहले फ्लोरीन को क्लोरीन से रिएक्शन करो, फ्लोरीन को ब्रोमीन से रिएक्शन करो, फ्लोरीन को आयोडीन से रिएक्शन. तो तुम्हें पता चल जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये जो है आयोडाइज नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज नहीं कर रहे हैं, आयोडाइज नहीं, ऑक्सीडाइज नहीं कर रहे हैं, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन इंक्रीजेज इन द ऑर्डर ऑफ आयोडीन टू फ्लोरीन. तो फ्लोरीन क्या है, बेस्ट ऑक्सीडेंट है. उसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडीन को H2SO4, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को H2SO4, आयोडीन को कॉपर 2+ से रिएक्शन कर दो तो तुम्हें पता चल जाएगा किस तरह से ये हाइड्रोआइडिक एसिड जो है वो बेस्ट रिएक्टेंट है, और मतलब पूरे हाइड्रोहैलिक कंपाउंड्स में से सबसे बेस्ट रिएक्टेंट यही है, राइट. चलिए अब हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ. वाई डज द फॉलोइंग रिएक्शन अकर. यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया तुमको, जेनन हेक्साफ्लोराइड 4- में तुम्हें बताना है कि ये रिएक्शन क्यों होता है.
ये इसलिए होता है कि इस रिएक्शन में फ्लोरीन ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों होता है, मतलब डिसप्रपोर्शन रिएक्शन है जो आप देख सकते हैं नीचे में जो रिएक्शन, जो फ्लोरीन -1 से 0 और xenon +8 से +6 में जाता है। आप लोग जानते हैं कि ये कुछ नमूने कंपाउंड्स है, मतलब वेल स्टेबल कंपाउंड्स है, जिस कारण से इसको बताना पड़ता है इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर xenon का डिक्रीज हो रहा है और फ्लोरीन का जो है इंक्रीज हो रहा है, जिस कारण से ये कंपाउंड का किस तरह से फॉर्मेशन होगा। वी कैन कंक्लूड दैट Na4HCO6 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन फ्लोराइड माइनस। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, एक रिएक्शन है H3PO2 + 4 AgNO3 + 2H2O gives H3PO4 + 4 Ag + 4 HNO3। बी है हमारा, देख सकते हैं आप ये सारे कुछ रिएक्शंस है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और किस तरह से है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, वो आपको बताना है। ये सारे के सारे सवाल बहुत ही सिंपल है और मुझे विश्वास है आप लोगों को, क्योंकि मैंने बताया है किस तरह से हमें पता करना है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आपको बैलेंस करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। मैंने बताया था एसिडिक मीडियम में H+ और बेसिक मीडियम में OH- को ऐड करके किस तरह से, चाहे हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, अदरवाइज हाफ रिएक्शन मेथड, तो ये हमारा आयन इलेक्ट्रोड मेथड है, मतलब हाफ रिएक्शन मेथड है। तो हाफ रिएक्शन मेथड में किस तरह से आप बताओगे, जैसे देख लो यहाँ पर स्टेप 1 में आयोडीन -1 से 0 और स्टेप 2 में आप देख लीजिए आयोडीन को कैसे बैलेंस करोगे, स्टेप 3 में देख लो मैग्नेट को कैसे बैलेंस करोगे। उसके बाद बेसिक मीडियम है कि एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम होगा तो हाइड्रोक्साइड ऐड करोगे और राइट हैंड साइड में ऑटोमेटिकली तुम्हारा वाटर ऐड हो जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, दोनों स्टेप को लिखोगे और दोनों स्टेप लिखने के बाद कैंसिलेशन करोगे, जो तुम्हारा फाइनल रिएक्शन बचेगा 2MnO4- + 5SO2 gives 2H2O + 2H2O + H+ gives 2Mn2 + 5HSO4-। तो इस तरह से तुम इजीली बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई डिफिकल्टीज फेस हो रहा है कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है, तो डेफिनेटली यू कैन डू अ कमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से बैलेंस करना है हमें, राइट। इजी है, थोड़ा भी अगर तुम्हें डिफिकल्टीज लगे देन यू कैन आस्क मी। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन इन बेसिक मीडियम, वो तुम्हारा एसिडिक मीडियम, ये बेसिक मीडियम है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर, और वो जो था हमारा कौन सा नंबर था, वो हाफ रिएक्शन मेथड था, ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। ये भी इजी है बच्चों, जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। लेकिन अगर आप लोगों को कोई भी रिएक्शन बैलेंस करने में दिक्कत हो देन यू कैन डेफिनेटली डू अ कमेंट। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इजी स्टेप बाय स्टेप पॉज करके लिख सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करो, मुझे कॉल करो, बताओ कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, किस तरह से इसको हमने बैलेंस किया है, राइट। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं तुम लोगों को ये दोनों मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड, ये दोनों मेथड तुम लोग अच्छे से सीख गए हो, तुम्हें कोई दिक्कतें नहीं है, इजीली तुम लोग सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन बना सकते हो। अगर फिर भी तुम्हें लगे कि नहीं सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट करो, सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, फ़ोन करके पूछो मुझे कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, चाहे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हो या फिर हाफ रिएक्शन मेथड हो, जो भी मेथड नहीं समझ में आया यू कैन आस्क टू मी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। व्हाट सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस फॉलोइंग रिएक्शन। ये भाई आपका एक रिएक्शन है, साइनाइड प्लस हाइड्रोक्साइड गिव साइनाइड प्लस साइनाइड ऑक्साइड प्लस वाटर। भाई इसमें आपको बताना है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन +3 से +4 किस तरह से हो रहा है, ऑक्सीडेशन कैसे होगा, रिडक्शन कैसे होगा, आपको पता, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन आपको बताना है इस रिएक्शन में। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन in the various step, it can be easily observed that the same compound is being reduced and oxidized simultaneously in the given equation. So reaction of this compound can be oxidized, known as disproportion reaction. Thus it can be said that the alkaline decomposition of cyanogen is an example of disproportion reaction. एक ही एलिमेंट का तुमको पता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 है Mn3 plus ion is an unstable solution and undergoes to disproportion reaction Mn2 plus MnO2 and hydrogen plus ion. Write a balanced ionic equation. वापस तुम्हें बैलेंस्ड आयनिक इक्वेशन लिखना है Mn3 प्लस को MnO2 के साथ. तो वापस स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, फिर बैलेंस कर दो और लिख दो यहाँ पर आयनिक इक्वेशन. कितने इलेक्ट्रॉन्स को लिया, तुमने किस तरह से बैलेंस किया, उसको लिख देना है. क्वेश्चन नंबर 22, आपको कंसीडर द एलिमेंट सीजियम, नियन, आयोडीन एंड फ्लोरीन. ये एग्जाम्पल आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, कौन से पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, कौन से दोनों हैं और कौन से दोनों में से नहीं हैं. तो फ्लोरीन यहाँ पर तुम्हें पता है कि फ्लोरीन जो है निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, सबको पता होता है फ्लोरीन निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. सीजियम +1 मतलब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. हाँ, आयोडीन जो है -1 से +7 तक करता है. नियन जो है वो 0 है, तो ना तो वो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है. चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्लोरीन इज यूज टू प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर. कभी पिए हो क्लोरीन वाला वाटर ब्लीचिंग पाउडर डाल के? लेकिन अगर ज़्यादा क्लोरीन डाल दोगे तो वो क्या करता है, अगर क्लोरीन इज यूज टू प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर, एक्सेस ऑफ क्लोरीन इज वेरी हार्मफुल. The excess of chlorine is removed by treating with sulfur dioxide. Present a balanced equation for the redox change taking the place. ज़्यादा अगर क्लोरीन हो जाएगा तो वो घातक भी हो सकता है, प्राणलेवा भी हो सकता है. लेकिन अगर उसमें से तुम्हें क्लोरीन निकालना है तो कैसे निकालोगे, सल्फर डाइऑक्साइड डाल दोगे. तो रिएक्शन बैलेंस तुम्हें दिखाना है. Cl2 + SO2 + H2O gives Cl- + SO4 2-. इसको आप हाफ रिएक्शन मेथड से ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, फिर वापस स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, कितने ऑक्सीजन को तुमने लिया, किस तरह से बैलेंस किया, और फिर फाइनल रिएक्शन Cl2 + SO2 + 2H2O gives 2Cl- + SO4 2- + 4H+. अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है. Refer the periodic table given in your book and now answer the following questions. Select the possible non-metal that can show disproportion reaction. Select the 3 metal that can show disproportion reaction. मतलब metal और non-metal कौन कौन से disproportion reaction शो करते हैं. याद रखना बच्चों, जो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सब जो है नॉन मेटल है, जो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. तो इसलिए ये तीनों नॉन मेटल को आप बता सकते हो कि डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन. उसी तरह मेटल में मैंगनीज, कॉपर, गैलियम, और बहुत ऐसा मत सोचना कि इतने ही एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं. उसी तरह नॉन मेटल भी बहुत है, लेकिन ये सब सबसे ज़्यादा हैं. तो ये आप बता सकते हो कि ये तीनों जो है तुम्हारे मोर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन. क्वेश्चन नंबर 25, ओस्टवार्ड प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड. First step involving the oxidation of ammonia gas by oxygen gas to give nitric oxide gas and steam. What is the maximum weight of nitric oxide that can be obtained starting only with the 10 gram of ammonia and 20 gram of oxygen? पहले तो ये रिएक्शन को बैलेंस करो. अमोनिया प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रिक एसिड प्लस 6H2O. अब सबको बैलेंस कर दो. यहाँ पर देख लो, अमोनिया 68, ऑक्सीजन 160, नाइट्रिक एसिड 120 और वाटर 108. तो यहाँ पर देख लो 68 ग्राम ऑफ अमोनिया को 68 ग्राम ऑफ अमोनिया 160 ग्राम वाटर से रिएक्ट करता है. तो 10 ग्राम NH3 कितने से रिएक्ट. तो पहले तो देख लो 68 ग्राम 160 से, तो 1 ग्राम जो है 160/68 से, 10 ग्राम 160/68 × 10 से, बराबर. अब सबको डिवाइड करके करोगे तो 23.53 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आएगा. बट द अवेलेबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज 20 ग्राम. यहाँ पर 23 ग्राम चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हारे पास कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 ग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो यहाँ पर O2 लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा. O2 अगर लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा तो तुम्हें नाइट्रिक ऑक्साइड का फिर वहाँ पर वेट बैलेंस करना. तो यहाँ पर देख लो 160 ग्राम ऑक्सीजन 120 ग्राम नाइट्रिक एसिड से करता है. तो 20 ग्राम कितने से करेगा, तो 160 × 20, बराबर. तो ये तुम्हारा हो जाएगा टोटल 15 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड. हैंस द मैक्सिमम ऑफ 15 ग्राम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन. कितना ऑब्टेन होगा, वहाँ पे 23 ग्राम चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम में तुम्हें 15 ग्राम नाइट्रिक ऑक्साइड ऑब्टेन होगा. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25. अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ. यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो हमारा 8.1 टेबल NCERT में दिया भी हुआ है, इसमें आपको बताना है
प्रेडिक्ट द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल और नॉट। Fe3 प्लस और I माइनस, Ag प्लस और Cu, ये जो पॉसिबल रिएक्शंस है Fe3 प्लस और I माइनस, कैसे होगा? 2Fe3 प्लस 2I माइनस गिव्स 2Fe2 प्लस प्लस I2। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दोनों रिएक्शन को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो लिख देना है आपको टेबल्स को देख करके, और उसके बाद रिएक्शन को बैलेंस करना है और बताना है कि कितना होगा। जैसे देख लो, आयोडीन का तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है टेबल 8.1 में -0.54 होता है आयोडीन का, बराबर। और आयरन का भी दिया हुआ है, आयरन 3 प्लस से 2 प्लस में जाने में 0.77, बराबर। तो अब देख लो, इस दोनों को तुम ऐड करोगे तो प्लस 0.23 आएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द ओवरऑल रिएक्शन इज पॉजिटिव, हेंस द रिएक्शन बिटवीन आयरन 3 प्लस एंड आयोडीन माइनस इज अ फिजिबल। अगर पॉजिटिव होगा तो फिजिबल होगा, बराबर। उसी तरह से यहाँ पर सिल्वर और कॉपर का ले लो। कॉपर का जो है -0.34 और सिल्वर का प्लस 0.80, तो वापस यहाँ पर प्लस आएगा, तो पॉजिटिव आया तो क्या होगा? ये रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? फिजिबल होगा। सिमिलरली Fe3 प्लस और Cu, तो वापस तुम्हारा पॉजिटिव आया, दिख रहा है तुम लोगों को। तो जब भी तुम्हारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो अगर पॉजिटिव होगा तो फिजिबल, निगेटिव होगा तो क्या होगा बताओ? अगर निगेटिव हुआ तो फिजिबल नहीं होगा, बस वही लिखना है और कुछ नहीं। देख लो, जैसे ये रिएक्शन है सिल्वर प्लस आयरन 3 प्लस आयरन प्लस प्लस Fe2 प्लस, तो ये जो है तुम्हारा निगेटिव चला गया, तो बता देना कि ये फिजिबल नहीं है, बराबर। तो ये सारे रिएक्शन में बस खाली तुमको बस इतना लिख करके बताना है और इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, जो मैंने तुम लोगों को सिखाया था बैलेंसिंग इक्वेशन। हाँ, ये याद रखना है कि अगर तुम्हारा E0 का वैल्यू पॉजिटिव है तो फिजिबल है, और अगर पॉजिटिव नहीं है तो फिजिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब तुम्हें बस खाली इतना बताना है कि प्रोडक्ट की होगा। अगर तुम AgNO3 को एक्वस सॉल्यूशन में सिल्वर इलेक्ट्रोड्स में डुबाते तो क्या होगा? भाई नाइट्रेट आयंस निकलेंगे और की होगा Ag प्लस और NO3 माइनस। तुम्हें तो पता ही है एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद जो है केटायन और एनायन डिसोशिएट हो जाते हैं, बराबर। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन है सिल्वर इलेक्ट्रोड्स पे क्या होगा। सिल्वर इलेक्ट्रोड्स पे तुमको पता है यहाँ पर Ag प्लस में टूटेगा तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाकर के Ag बनेगा, और एक इलेक्ट्रॉन जाने के लिए उसको 0.80 वोल्ट करंट चाहिए, जो वाटर में से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे तुमको पता है Ag प्लस आयन रिड्यूस होकर के कैथोड पर जा रहा है। सिल्वर मेटल और वाटर मॉलिक्यूल्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड एट द एनोड, बट द ऑक्सीडेंट पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इज हायर देन दैट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये था हमारा नाइट्रिक एसिड वाला, ये रिएक्शन शो कर देना है। उसी तरह दूसरा रिएक्शन देख लो, प्लैटिनम का है और ऑक्सीजन के साथ। तुमको तो पता है कि ये जो है डिपॉजिटेड प्लैटिनम कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज, इसलिए तुमको पता है जितने भी गोल्डन या फिर हम लोग ज्वेलरी वाले एलिमेंट बोलते हैं ना, वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, तो उन लोगों को जल्दी डिपॉजिटेड नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें पता है वाटर अकर्स टू लिबरेट एट द कैथोड, कैथोड पे सिल्वर प्लस आयन रिड्यूस्ड एंड गेट डिपॉजिटेड। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होगा? H प्लस और SO4 2 माइनस, बराबर। देख लो यहाँ हाइड्रोजन का 0 होता है, H2O में यहाँ पर -0.83। कैथोड H प्लस आयन इज रिड्यूस टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ऑन द अदर हैंड सल्फेट में जब मिलाओगे तो यहाँ पर सल्फेट जो है ऑक्सीडाइज होकर के SO4 2 माइनस, जो रिएक्शन को ब्रेकअप करोगे तो लोअर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड एट द एनोड टू लिबरेट O2 मॉलिक्यूल्स। ये देख लो यहाँ पर तुम्हारा फोर्थ वाला भी है, उसी तरह से फिफ्थ वाला भी है। देख लो, अगर तुम्हें कोई भी डिफिकल्टीज हो देन डेफिनेटली यू कैन ड्रॉप योर डाउट इनटू द कमेंट बॉक्स सेक्शन। अगर तुम लोगों को लिखने में डिफिकल्टीज हो रही है तो पहले पॉज कर लो, लिख लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो, राइट। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट्स। Aluminum, copper, iron, magnesium and zinc. A metal of a stronger reducing power displaces another metal of a weaker reducing power from its solution of salt. The order of increasing reducing power of the given elements ऐसे बताना है। वही मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पता ही होगा तुम लोगों को। कॉपर, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? पोटाशियम, याद रखना। Hence we can say that the magnesium can displace aluminum from its salt solution, but aluminum cannot displace magnesium. तो अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखना है तो इस तरह से बता सकते हो कौन कौन सा एलिमेंट किसको डिस्प्लेस कर सकता है।
तो ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा पहले और जो सबसे कम होगा उसको बाद में। नाउ 29th, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रोलाइसिस वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें तुम्हें अरेंज करना है मेटल्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। कैसे करोगे देख लो। यहाँ पर सबसे पहले तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दिए हुए हैं और तुमको अरेंज करना है इन मेटल्स को increasing order of reducing power. The lower the electrode potential, the stronger is the reducing agent. However, the increasing order of the reducing power of the given metal is like this. तो पता है, बस याद रखना है सबसे ज़्यादा किसका होगा, पोटाशियम। याद रखना है सबसे कम गोल्ड का। तुम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा भी होगा कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, तो उसमें बताया गया होगा तुम लोगों को। चलिए अब हम लोग चलते हैं फाइनल क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, depict the galvanic cell in which the reaction zinc plus 2 silver plus gives zinc 2 plus 2 silver take place. Further show which of the electrode is negatively charged, the carriers of the current in the cell and the individual reaction at the each electrodes. तो तुम लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा गैल्वेनिक सेल में कैसे डिसोसिएट होगा, जिंक 2 प्लस सिल्वर। तो यहाँ पे ये तुम्हारा गैल्वेनिक सेल का हाँ याद रखना बच्चों कि किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये निगेटिवली चार्ज कौन होगा, पॉजिटिवली चार्ज कौन होगा, वो तुम्हें बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो रिडॉक्स रिएक्शन है इस तरह से है, जिंक 2 प्लस सिल्वर। जो क्वेश्चन में था हमारा जिंक सिल्वर प्लस, तो यहाँ पर जिंक जो है क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, सिल्वर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पर दूसरा है, अब इलेक्ट्रोड निगेटिवली चार्ज बिकॉज द इलेक्ट्रोड ऑफ जिंक ऑक्सीडाइज टू जिंक 2 प्लस एंड लिविंग द इलेक्ट्रॉन्स accumulate to this electrode. Second question, the carriers of the current in this cell. Ions are the carriers of the current in this cell. Third question, individual reaction at each electrodes. तो कैसे बताओगे individual reactions को? The reaction taking place zinc electrode can be represented as जिंक जो है जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और सिल्वर प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आप बता सकते हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। So hope all of you understand the whole exercise solution. अगर आप लोगों को पूरे सॉल्यूशन में कहीं भी डाउट है तो अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्रेजेंट करें। और अगर मान लो कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं समझ में आ रही तो मुझे कॉल करके भी आप लोग पूछ सकते हैं। That's all for today. Thank you very much. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है then don't forget to like and subscribe my channel. That's all for today. Thank you very much.